Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are covering our chapter 20th, a very new topic that is offenses relating to marriage. Bache, we have skipped two chapters in between, that is your chapter 18th, which is offenses relating to documents and to property marks, and chapter 19th is criminal breach of contracts of services. Okay, these two chapters are not that important, and if you want to still have knowledge, give the brief reading of all the sections. Now coming to the very important chapter, very important topic, 100% in your exams, and even in interview question is asked from this topic, that is of offenses relating to marriage. And in it we are going to cover bache sections 493 to 498. Okay, so how you have to revise this chapter, I'll tell you in very easy way. Let us divide this chapter in four parts: 1, 2, 3, and the fourth. Your first part will be mock marriage. Okay, we will discuss one by one. First one is your mock marriage, and it we are going to cover section 493 and 496. Okay, your second part is bigamy, and it we are covering section 494 and 495. Your third part is related to adultery, and your section 497, very important. And the last one is criminal elopement. It's not that important bache, but still we will discuss this, and it is covered in section 498. I hope now you all are clear. So let us start one by one with first section, that is 493. The very first part we are going to discuss, that is mock marriage. Okay, so bache, mock marriage, as the name suggests, it is like nakli vivah karna. Okay, when a man causes deceit to a woman, like cheat to a woman who is not his wife, but makes her convince to believe that she is his wife and does sexual intercourse. ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चे, लाइक ए है ये, राइट, ये मेल है, ये ज़रूरी नहीं है ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, सो ये मैरिड भी हो सकता है और अनमैरिड भी हो सकता है. ठीक है, तो ये जो ए है ये क्या करता है, बी अ फीमेल, एंड ऑल्सो नॉट नेसेसरी शी इज़ मैरिड और अनमैरिड, सेम. ठीक है, ए बी को, बी का मतलब बी को इस तरीके से इसको याद करवाता है कि वही इसका हस्बैंड है, राइट, और ये भी प्रूव करवाता है कि बी ही उसकी वाइफ है, राइट, एंड देन डज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद बी, although in actual he is not his husband and neither she is his wife, but he demonstrates a situation like that, that yes, he is his husband, so does a sexual intercourse. This is 493 talks about. Simultaneously we will do section 496 here. इसमें क्या होता है बच्चे, the accused here knows that no valid marriage will be effected but still goes through some form of marriage, right. यहाँ पर वो मैरिज एक्चुअल में करता है, उसको पता है कि ये कोई वैलिड मैरिज नहीं होगी, बट वो कुछ ऐसे सिचुएशंस परफॉर्म कर देता है जिससे मैरिज परफॉर्म हो जाए डिसऑनेस्टली एंड विद द फ्रॉडुलेंट इंटेंट. उसके माइंड में इंटेंशन देखिए यहाँ पर क्या है, इट इंटेंशन इज टू डू फ्रॉड, राइट. तो अब आपको दोनों सेक्शन समझ में आए. सेक्शन 493 में एक्यूज्ड इज ओनली मेल, रिमेंबर दैट बच्चे, एक्यूज्ड सिर्फ मेल होता है, बट 496 में इट कुड बी मेल और फीमेल, क्योंकि वॉइड मैरिज कोई भी परफॉर्म कर सकता है. ओके, एंड next difference among these two sections is that in 493 sexual intercourse is necessary. Okay, everything is done
for performing the sexual intercourse, whereas in 496 there is only the dishonest intention that is necessary. ओके सिर्फ वो मैरिज एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कर रहा है, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, बट इन इट ओनली द रीज़न इज सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके बच्चे, 493 में जो एक्यूज्ड होता है ही इज़ पनिश्ड फॉर 10 years plus fine. And in 496 as there is only dishonest intention, so punishment would be less than this, that is 7 years plus fine. Okay बच्चे, this is all about your section 493 and 496. Now moving to the next topic, that is bigamy. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे बाइगेमी, जिससे आपको नेम भी सजेस्ट करता है द्विविवाह, राइट. यू परफॉर्म नेक्स्ट मैरिज. तो बाइगेमी में क्या होता है बच्चे, सेकंड मैरिज परफॉर्म करना ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज. ओके, आपकी फर्स्ट मैरिज अभी है एंड यू आर परफॉर्मिंग द सेकंड मैरिज, दैट इज इलीगल इन इंडिया, राइट. द रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम द सेम डजंट हैव एनी वैलिडिटी. Bigamy becomes an offense only if the husband or the wife is alive, right. अगर वो फर्स्ट मैरिज से उनके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, अगर वो अलाइव है, जिंदा है, तभी बाइगमी एक ऑफेंस है, राइट बच्चे. इट इज़ एन ऑफेंस इवन इफ इट इज़ परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ द फर्स्ट वाइफ. अगर फर्स्ट वाइफ की है मदद मतलब कंसेंट से अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हो, स्टिल इट इज़ ऑफेंस इन इंडिया. एंड यू नो पनिशमेंट इज़ अप टू 7 years प्लस फाइन. ओके, समझ में आया बच्चे. 494, 495 जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस. इसमें क्या होता है, यहाँ पे छुपाया जाता है, सेम ऑफेंस को कंसील किया जाता है फ्रॉम द फॉर्मर मैरिज या फ्रॉम द पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिजेस कॉन्ट्रैक्टेड. जिसके साथ आप सेकेंड मैरिज करने वाले हो, आप उससे छुपाते हो बात को कि आई एम ऑलरेडी मैरिड, राइट. ओके, आप सेकंड मैरिज जब करते हो तो उस पर्सन को ये बिलीव दिखाते हो, उससे ये कंसील करते हो कि येस यू वर प्रीवियसली मैरिड टू समवन एल्स. एंड एज हियर इज मोर क्राइम यू आर डूइंग, यू आर faking your marriage with the second person, so here punishment is 10 years plus fine. Okay बच्चे, so the marriage will be unlawful as per Hindu Marriage Act and therefore it will be void in this bigamy, but under Muslim law. एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर बच्चे, एक्सेप्शन किसकी है, मुस्लिम लॉ की. मुस्लिम लॉ में क्या होता है, there are 5 marriage that 5th marriage is declared void. So 4 marriages जो होती हैं they are valid, but when someone performs 5th marriage, that is void in Shia, okay, and will be liable for bigamy. After performing the 4 marriages, if you perform 5th one, then he will be liable for bigamy. And in like जो सुन्नी कम्युनिटी होती है बच्चे, उसमें 5th इरेगुलर हो जाती है, 6th जाके void होती है. तो ये थोड़ा डिफरेंस है सुन्नी और शिया में. सुन्नी में 4 मैरिजेस वैलिड है, 5th वन के लिए आप बाइगेमी के लिए चार्ज हो गए, बट सुन्नी में क्या होता है 5 मैरिजेस ओके, 5th को इरेगुलर मान लेते हैं, बट वहाँ पे आप 6th के लिए बाइगेमी के लिए लाइबल हो गए, ठीक है. तो hence in these situations particular person will be liable for bigamy. अब इसकी कुछ चीज़ें हैं बच्चे समझने की. If a woman gets into second marriage, अगर वुमेन होती है, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, हिंदू लॉ हो, whatever be the law is, she will be liable for bigamy. वो सेकेंड मैरिज में ही लाइबल हो जाती है. सिर्फ मुस्लिम में ये एक है कि वहाँ पे मेन आफ्टर फोर्थ लाइबल होते हैं, ओके. अब बच्चे इनकी इस बाइगमी की कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना केस. एच है, एच इज़ हर हस्बैंड, राइट. ही गॉट मैरिड टू डब्ल्यू वाइफ एंड वाइल फर्स्ट मैरिज इज subsisting, H got married to another woman, that's W1. Okay, now H will be liable for bigamy. अब इस केस में liable है bigamy के लिए. So, but क्या करता है, if when criminal proceedings were pending, इनके बीच में criminal proceedings अभी चल रही हैं कोर्ट में, H applied under section 34 for declaration, 34 बच्चे special relief act,
ओके ये याद रखना, अंडर सेक्शन 34 स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंडर वो जाके डिक्लेरेशन दैट हिज अर्लियर मैरिज इज वॉइड, वो ये डिक्लेरेशन की डिमांड करता है दैट हिज अर्लियर मैरिज इज वॉइड मीन्स विद W, एंड द मोमेंट द डिक्लेरेशन इज अवॉर्डेड, उनके फेवर में आ जाए, मतलब उसको डिवोर्स मिल जाए, हिज सेकेंड मैरिज वुड बी वैलिड एंड प्रोसीडिंग्स वुड फ्रस्ट्रेट, वहीं पर प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएगी और इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग अगर उसकी फर्स्ट मैरिज वॉइड हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है, फर्स्ट मैरिज उसकी हट जाएगी तो तुरंत ही, ठीक है, साथ ही जो सेकंड मैरिज की गई है उसको वैलिड मान लिया जाता है। ऑल राइट बच्चे, सो आई होप नाउ यू क्लियर अबाउट दिस बाइगमी। बाइगमी में बच्चे जो हमारा हिंदू है, जो हम हिंदू लोग की बात कर रहे हैं, दिस सेक्शन मेक्स बाइगमी एन ऑफेंस इन ऑल केसेज ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन इंडिया irrespective of religion of either sex, namely Hindu, Parsi, Christian। मुस्लिम का मैंने आपको अलग से बता दिया है, हिंदूज में सिक्स, जैन, बुद्धिस्ट सब इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। सो बाइगमी बिटवीन टू हिंदूज विल बी वॉइड if the marriage is solemnized after commencement of the Hindu Marriage Act, at the date of such marriage either party has the spouse living। so बाइगमी कब होगी, स्पाउस लिविंग होना चाहिए और जो मैरिज है वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू परफॉर्म होनी चाहिए। हमारा जो बच्चे हिंदू मैरिज एक्ट है वो भी बाइगमी के अगेंस्ट है। पर्सन शुड नॉट डू सेकेंड मैरिज इफ हैपन देन अकॉर्डिंग टू, इसमें जो सेक्शन 11 है हमारा, राइट, ऑफ दिस एक्ट, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, राइट। और सेक्शन जो 17 है उसमें भी बताया गया है, वन हु डज बाइगमी विल गेट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 494, 495 accordingly। All right, now let us discuss the very important topic, that is adultery। Now the section 497 talks about adultery, राइट। ध्यान से सुनते जाना है बच्चे, इसमें इस सेक्शन में क्या क्या डेवलपमेंट होती गई, ठीक है, व्याभिचार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नाउ अब इसमें क्या होता है, इफ ए इज अ मेल पर्सन एंड ही इज मैरिड टू बी, दैट इज फीमेल, ही इज मेल, ही इज हस्बैंड, ही इज वाइफ, राइट, और इनके बीच में बच्चे मैरिज हुई है, बट कोई पर्सन सी है, राइट, सी हियर, वो क्या करता है, अपनी मर्जी से सी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, राइट। अगर सी बी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, ही इज ऑल्सो मेल, तो जो सी व्यक्ति है इसने ए के खिलाफ क्या किया है, एडल्ट्री की है। समझ में आया? ए और बी मैरिड है, बी इज वाइफ ऑफ ए, एंड इफ सम अदर पर्सन सी, इवन विद कंसेंट ऑफ बी, बी की कंसेंट से, राइट, दैट डजंट मैटर्स, इनके बीच में अगर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है बच्चे, तो यहाँ जो सी है वो ए के खिलाफ क्या कर रहा है, एडल्ट्री कर रहा है, एंड हेयर सी इज ओनली द एक्यूज्ड, राइट। बी इज नीदर चार्ज्ड एज एक्यूज्ड नोर एज एन अबेटर, बी को ना अबेटर माना जाएगा और ना ही एक्यूज्ड माना जाएगा, राइट। ऑल्दो सेक्सुअल इंटरकोर्स हमेशा दो पर्सन के बीच में होता है, बट हेयर ओनली वन पर्सन is getting liable under this section। और यहाँ B ने ना तो A से तलाक लिया है और ना ही C से देखो शादी की है, राइट, सो शी इज स्टिल द वाइफ ऑफ A। तो ये है क्या है बच्चे, 494 या 497 एडल्ट्री के अंदर लाइबल होगा। ओके, दिस इज द केस ऑफ एडल्ट्री। और यहाँ पर जो पनिशमेंट होती है इसमें कितनी होती है बच्चे, 5 years प्लस फाइन, राइट। अब हाँ, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि जो ए है वो बी से इस ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकता है, बट उसको चार्ज नहीं कर सकता। ओके, बी पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, शी विल नॉट बी लायबल अंडर एनी सेक्शन, बट ए कैन क्लेम डाइवोर्स फ्रॉम हर ऑन दिस ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, राइट। अब हमारा बच्चे केस आया है, इसके बाद हम केसेस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं इसमें पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स आपको करवाने वाली हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए। योर केस वाज यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, राइट, 1954 का केस था बच्चे। इसमें यूसुफ ने बोला
वाइफ को ऑफेंडर नहीं तो एटलीस्ट अबेटर तो मानना चाहिए, मतलब शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर क्राइम, तो बी को हम अबेटर तो मान सकते हैं क्योंकि वो भी तो कंसेंट दे रही है. हियर सुप्रीम कोर्ट डिनाइज द प्लिया ऑफ यूसुफ. यूसुफ के प्लिया को डिनाई किया एंड सेड वाइफ कैन नॉट बी चार्ज एज ऑफेंडर और अबेटर, नीदर बोथ, कुछ भी उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा. ऑल राइट. Then comes the second case after this was W. Kalyani versus State. राइट बच्चे, और ये हमारा केस आया 2012 का. राइट, तो इसमें दोबारा से यूसुफ वाली ही प्लिया उठाई गई बच्चे, और इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज्ड इट्स डिसीजन एंड सेड वुमेन इज फ्री फ्रॉम ऑल दी चार्जेस. वुमेन, फिर से यही सेम बात की गई, वुमेन कैन नॉट बी चार्ज्ड एज ऑफेंडर नीदर एज एन अबेटर. ऑल राइट. देन द नेक्स्ट केस कम्स, दैट इज श्रीमती सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, ये केस था बच्चे. तो इस केस में क्या हुआ है बच्चे, एक हस्बैंड है और वाइफ है. राइट, हस्बैंड जो है अनदर वुमेन वाई के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है. राइट, तो इसमें ये बोला गया कि अब वाइफ जो है वो वाई पर एडल्ट्री का चार्ज क्यों नहीं लगा सकती. राइट, ये भी तो क्वेश्चन बनता है. वाइफ कैन ऑल्सो क्लेम चार्ज ऑन दिस वुमेन, बट नहीं लगेगा. एज वी हैव सेड, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रूल आउट कर दिया, वुमेन इज नॉट लायबल इन दीज केसेस. देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट केस, that is Joseph Shine versus Union of India. Right बच्चे, and this case was of 2018. लैंडमार्क जजमेंट आई बच्चे इसमें, और ये हमारा एक लैंडमार्क केस भी है, इसको ध्यान से सुनना इसमें क्या था. सो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को अब ऑफेंस नहीं माना है. राइट, एडल्ट्री इज नाउ नो मोर एन ऑफेंस एंड सेड एडल्ट्री बट इट इज़ द गुड ग्राउंड फॉर गेटिंग डिवोर्स. सो एडल्ट्री अब डिक्रिमिनलाइज कर दी गई बच्चे, और इसको एक ग्राउंड फॉर डिवोर्स माना गया. ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया जजमेंट आई. ओके, एंड दिस सेक्शन 497 वाज अप्लाइड ऑल ओवर इंडिया. ओके, तो अब आपने इसमें डेवलपमेंट देखी. नाउ एडल्ट्री इज नो मोर ऑन ऑफेंस. अब इसमें ना मेल चार्ज होगा ना फीमेल कोई चार्ज होगी, जो ऑलरेडी चार्ज नहीं थी, क्योंकि दैट्स independent decision of particular person to have an intercourse with any other woman, but the respective party, that is wife or husband, both can claim divorce on this ground. Right, now your next section is section 498 that discuss about enticing or taking away or detaining with the criminal intent a very married woman. Right, elopement, आप भगा लेते हो married woman को. तो ये आप बच्चे रीड करेंगे अपनी बुक से, not that important, but give just a brief reading. Now I have done all the offenses relating to marriage and we have discussed thoroughly case wise case. I hope you get the clear concept in your mind. So in next video we are going to start with another very important topic. Stay tuned. Have a nice day. Thank you.